हाँ जी, आप लोग IMN लिख लीजिएगा ना ग्रुप में सब जन। टेक्निकल दे रहा था। भारती गुप्ता सब वीडियो ऑन कर लीजिएगा। नागा लक्ष्मी मणिकांता। ठीक है। राइट इन द ग्रुप IMN। ठीक है, फटाफट लिखिए। स्वीटी, भारती गुप्ता। राइट इन द ग्रुप IMN। Okay, let's start. Everyone is in on your videos, everyone. We will continue with our HR part. Yes. So any doubts you have in last session or last questions, or you started preparing about those questions? Everyone on your video and audio. वीडियो ऑन कर लीजिएगा आप लोग। Okay, good. So let's start. 1 second.
Let's start with our today's session on HR part. Okay. My first question of today is how long you will stay in the organization. Are you coming for the long term, or you have short plans in the company and you are continuing with the practice things, or you are going for the self-employment? Whatever you having planned for futures, they will ask you about your long-term interest in the organization. So what do you say? Everyone note down the questions as well. In the group also you can share. Anyone answer this question? And some of the organizations they are asking that about the bonds also. How many years would you like? We are providing 5 years bond. Would you like to stay or not? They're asking this way. But any company don't have 5 years bonds. They only have 2 to 3 years of bond maximum. Okay. Yeah. So they will ask you about the bond, or also how long you will stay to the organization if they don't have bond. So you don't have to mention some of the years. You have to say as we mutually benefited from the organization. Okay. Organization also gets benefit from our work, our skills or expertise, and also you are also getting the appraisals, you are also getting the promotion, you are also getting the learning. So you both have mutually benefited from that organization. Till then you will continue, or you are coming for the long stay in the organization. You are not coming for the short term. You want to expertise to that field, particular field. You want a expertise on that particular knowledge, whatever you are getting. So you are coming for the long stay, where you can take the decisions also for the betterment of the organization. Okay. So all, don't put some years. They will always ask you years batao, so you don't have to say. You have to say you both are mutually benefited. ठीक है. म्यूचुअल बेनिफिट होना बहुत जरूरी है. वी आर नॉट कपिंग फॉर दैट टाइम कि हमें बेनिफिट हो रहा है, कंपनी को नहीं हो रहा है तो कंपनी निकाल देगी ले ऑफ में. हम कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, हमें नहीं हो रहा है तो हम फिर भी निकल जाएंगे. तो एक पर्टिकुलर ईयर आपको मेंशन नहीं करना है. ऑलवेज यू हैव टू से दैट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट द जॉब. आपको कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप यू आर नॉट लुकिंग फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस. कभी कभार हम फैमिली बैकग्राउंड बताते हैं तो हम बताते हैं फैमिली में बिजनेस है. योर ब्रदर इज ऑल्सो वर्किंग, सॉरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनका बिजनेस है. योर फादर ऑल्सो हैविंग बिजनेस. तो समटाइम्स दे विल आस्क यू व्हाई यू आर नॉट इनटू बिजनेस. तो आपका लॉन्ग टर्म प्लान हो तो आप अपना पैशनेट बताओ, आप अपना उनको जुनून बताओ अबाउट दैट पर्टिकुलर जॉब. ठीक है. तो दिस इज योर वे, दिस वे यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट दे विल आस्क यू how you will see 5 years down the line. आप अपने आप को 5 years down the line कैसा देखते हो? Where you will see yourself 5 years down the line. 5 years down the line हमेशा 5 साल बाद होता है. 5 से 6 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? Can I say something regarding this? Yes, yes. Everyone has to answer this question. ठीक है. जिसको भी Yeah. आता है, please put your points. Where you will see 5 years. Yeah. In one of my interviews before Conzero, one of the at the time they have asked me that how long do you stay in my organization? It's a startup. Actually it is a startup. I said that I am very passionate about this job, and also I want to dedicate my time in that, and I will contribute my 100%, and also I'm a very keen learner. Once the appraisals, we will get the mutually benefits regarding this. I said. Krishna, आप, you have a lot of disturbance at the back side. Can you repeat your answer once? Yeah, I said that
I said that I'm very passionate about this job, and also we will get mutually benefited. I am a very keen learner. I can learn many things through your organization. Then how we are using the softwares, and what kind of activities it is going on, and I can learn in this ways. I have said. But Shriram, you are answering for the last question which I have said. कि long term आप क्या देखते हो और आप मिक्स कर रहे हो long term और अपना long term goal. But I am saying where you will see yourself 5 years down the line. That is different thing. मतलब 5 साल बाद आप कहाँ देखते हो? You will see yourself at managerial position. Manager नहीं बोलना है. You have to say that you will see yourself managerial position, so that you will contribute to the organization in the decision making also. You will take decision for the betterment of the organization. You will lead a team because you get the expertise into same field. आपने 5 साल एक फील्ड में काम कर लिया है, आपको एक्सपर्टाइज आ जाती है, सो दैट आप अब लीड करने लग जाते हो. यू आर ऑल्सो हेल्पिंग अदर्स, योर टीम मेंबर्स, so that you will take a opinion from each team member. According to their expertise, you will distribute the work also, and you will bring more business to the organization. ठीक है. आप हमेशा 5 साल बाद एक कंपनी को अपने बिजनेस की तरह देखने लग जाते हो. नॉट ओनली जॉब, आप उसमें वहां जॉब नहीं कर रहे, यू आर डूइंग द बिजनेस ऑल्सो. तो यू हैव टू स्पीक लाइक दिस कि you are seeing yourself at managerial position. You will bring more business to the organization. You will also participate in the decision making. You will lead the team. ठीक है. Yes, तो 5 साल बाद हमको where we have to see at managerial position. You have to lead a team because you get expertise. Now you have to distribute your knowledge to team member also, so that they will also learn from yours. ठीक है. Yes, sure. Okay. I move forward to next question. One second. Long term and next question is, what are your long term and short term goals? I am not asking your life goals. I am asking you in that organization, you place in that organization, what are your goals? Ma'am, Hmm? we have to say only 2 to 3 lines. Yes, each answer 2 to 3 lines only. Okay. ये आंसर्स बहुत शॉर्ट में होने चाहिए, ये बड़े आंसर्स नहीं डिमांड करते हैं. ठीक है. पॉइंट टू पॉइंट आंसर. ये बिहेवियरल टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, बस अप टू मार्क होना चाहिए आपका आंसर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल इन द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल सब लोग क्या बोलते हैं, एक अच्छी सी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में हमको प्लेस होना है. तो वो ऑर्गेनाइजेशन में यू ऑलरेडी गॉट प्लेस्ड. अब आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है? तो एनीवन वांट्स टू आंसर? Okay, the short term goal is you want to robust that system, you want to learn the areas of improvement, you want to easy that system so that you will learn whatever skills or working flow you required in the particular organization. शॉर्ट टर्म होता है कि आप 2 से 6 महीने के अंदर अंदर क्या सीखने वाले हो उस कंपनी से. ठीक है. तो वो ही आपका गोल होना चाहिए. You want to easy that system so that you will work for the organization in a well and effective manner.
ठीक है, तो योर शॉर्ट टर्म गोल इज ऑलवेज टू लर्न योर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, यू विल अंडरस्टैंड द वर्किंग फ्लो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, you will robust that system so that you can easily work for the organization for the betterment. And long term वही है, 5 years down the line हमें मैनेजरियल पोजीशन में देखना है, हमें टीम को लीड करना है, we have to take the decisions for the betterment of the organization, we have to take a opinion from the team member, we have to lead the team and we have to bring more business to the organization. आज से मैं अपने 5 से 6 साल जिसको मैनेजर्स को हो गए हैं ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल, वो कंपनी के लिए बिजनेस भी लेके आते हैं. दे आर नॉट ओनली वर्किंग फॉर देयर जॉब, दे आर ब्रिंगिंग द बिजनेस. वो एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं, तो ये भी तो एक तरह का बिजनेस है. और भी कोई डील्स उनको मिलती है, क्लाइंट्स मिलती है, तो वही बिजनेस की तरह काम करते हैं. तो 5 से 6 साल बाद हमारा लॉन्ग टर्म बिजनेस ये भी होना चाहिए. और कुछ कुछ आप अपने एम्स के बारे में भी बता सकते हो, बट फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको बताना है. ठीक है, ये लाइफ गोल की बात नहीं हो रही है. लाइफ गोल्स और अचीवमेंट इज अनदर क्वेश्चन. इट इज आस्किंग कि इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आप शॉर्ट टर्म क्या करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म क्या करना चाहते हो. ठीक है, यू ऑल रिसीव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन इंटरव्यूज. आपसे पूछे जाते हैं ना ये क्वेश्चंस. प्लीज स्पीक इट आउट. या सबसे ma'am. सबने पहली बार सुने हैं ये क्वेश्चंस. नहीं मैम, पूछे थे 5 years down the line वाला. है ना. यस, ओके ओके. Shall I move forward to next question? Next is strength and weaknesses. एक सेकेंड, मैं क्या क्वेश्चंस भी लिख के जा रही हूँ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, सो दैट वो आप लोगों को पता रहे. यस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हाउ यू आर आंसरिंग. व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, क्या बोलते हैं आप स्ट्रेंथ वीकनेसेस. कुछ तो आंसर पता होगा कैसे बोलना है. एनीवन, you can try also. I am not asking you a perfect answer. I know why you are here, you are learning from these classes, we are also learning from you, but at least एक अगर कोई न्यू क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो कैसे आंसर करोगे. तो एटलीस्ट ट्राई कि इफ यू गेट दिस आंसर क्वेश्चन तो हाउ यू आंसर दिस. यस सिमरन, ट्राई करो. सिमरन, स्वीटी, तन्वी, मैम मैंने अनिकांता, हरिप्रिया. मैम मैंने बोला था पिछले इंटरव्यू में, आई हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड आई एम अ क्विक लर्नर टू एंड आई हैव अ क्वालिटी ऑफ डेलीगेशन. ठीक है, तो And, आप क्या है कि स्ट्रेंथ एक एक वर्ड में बोल देते हो कि कीन लर्नर, क्विक लर्नर, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. बट दे वांट एग्जांपल्स. व्हाई यू आर ट्रीटिंग योरसेल्फ विद दिस स्ट्रेंथ. क्यों आप ये बोलते हो कि मेरे में ये स्ट्रेंथ है. अगर आप हार्ड वर्किंग बोल रहे हो तो ऐसा क्या काम करा है, व्हाट वर्क यू हैव डन एज अ हार्ड वर्किंग विच यू सेज कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ. इफ यू आर सेइंग यू आर अ क्विक लर्नर, कीन लर्नर, तो व्हाई यू आर सेइंग दिस. प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करी है, गिव द एग्जांपल्स. वो एग्जांपल्स के साथ ज्यादा बेटर समझेंगे. तो इट इज बेटर यू विल एक्सप्लेन योर स्ट्रेंथ विद एग्जांपल. अगर मैं बोलती हूँ हार्ड वर्किंग तो मैं ये बोलती हूँ विथ माय जॉब, विथ माय पार्ट टाइम जॉब, आई एम डूइंग द इंटर्नशिप एंड ऑल्सो आई एम कंप्लीटिंग माय CMA इन फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है, और वी हैव अ प्रेशर ऑफ ड्यू डेट्स, वी आर मेकिंग द डिलीवरेबल्स ऑन टाइम विथ एफिशिएंसी. वो क्यों होता है, क्योंकि हार्ड वर्किंग नेचर है. एक डे टू डे प्लानर्स में बनाती थी सो दैट मुझे पता रहे आज मेरी ये ड्यू डेट है, आज मुझे इसका एग्जाम देना है, तो वो प्रायोरिटाइज हो जाता है वर्क.
तो इसीलिए मैंने उनको एक्सप्लेन करते हुए बताया एग्जाम्पल। फिर मैंने बोला आई एम अ क्विक लर्नर, तो मेरे को रिसेंटली 2 प्रोजेक्ट्स मिले थे विच इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक मर्जर्स एंड एक्विजिशन का था और एक में मुझे मतलब पूरे क्लाइंट की डेटा वगैरह कलेक्ट करके वो बोलना था। तो आई गॉट 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स and I had deliverable all deliverables on time. I have cleared all the cash clearing things, finalized the balance sheet and P&L analysis within the time, and I got the award from Accenture leader for that. तो आई एम एक्सप्लेनिंग कि मैं इसीलिए हूं क्योंकि मैंने जल्दी से क्विकली लर्न किया। आई जस्ट ज्वाइन इन अगस्त और मुझे वो प्रोजेक्ट डिलीवर करे 6 months ही हुए थे, एंड आई गॉट अ रिकॉग्निशन आल्सो फ्रॉम एक्सेंचर लीडर। दैट इज अ बिग थिंग। तो इसीलिए मैं अपना ये पुट करती हूँ पॉइंट। तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग बोल रहे हो, क्रिटिकल थिंकर बोल रहे हो, स्मार्ट वर्कर बोल रहे हो, तो मेक श्योर यू विल ऑल्सो हैव योर एग्जाम्पल्स कि आपने ऐसा क्या किया है। प्रॉब्लम सॉल्व में आपने हो सकता है अपनी इंटर्नशिप में कुछ काम किया हो ऐसा, ऑडिटिंग में काफी मतलब ऑडिट के दौरान हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। वी हैव टू सॉल्व, वी हैव टू ऑब्जर्व ऑल द ऑडिट ऑब्जर्वेशंस एंड वी हैव टू क्लियर ऑल द थिंग्स। ठीक है, उनका आंसर भी हमारे पास होता है। तो वो एग्जांपल्स आप बताओ सो दैट उनको भी लगेगा कि ये सिर्फ बोलने के लिए पुट नहीं कर रहे स्ट्रेंथ स्किल्स, इनमें है ये स्ट्रेंथ। ठीक है, और वीकनेस भी हमेशा ऐसे बोलनी है कि वीकनेस हमारी वीकनेस नहीं है, वी आर ओवरकमिंग विद द स्ट्रेंथ। हम उसको ओवरकम भी कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, बट राइट नाउ आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द वेबिनार्स। और मैं बहुत ज्यादा पहले इंट्रोवर्ट होती थी, मैं सबके सामने बोल ही नहीं पाती थी, बट नाउ आई एम टेकिंग द सेशंस आल्सो, सो आई एम इम्प्रोवाइजिंग माई सेल्फ। तो आप भी ऐसा बोल रहे हो, पहले मैं बहुत फास्ट डिसीजन ले लेती थी, ना इंग्रेडिएंट्स देखा, ना उसका प्रॉज एंड कॉज देखा, बस डिसीजन ले लिया। बट नाउ आफ्टर क्वालिफाइंग माय कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आई एम टेकिंग डिसीजन विथ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉज एंड कॉज बिहाइंड दैट, कि उसका एडवांटेज क्या हो सकता है, उसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। अगर मैं ये कोर्स कर रही हूँ तो इस कोर्स से मुझे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे वो भी मैं नोट डाउन करती हूँ, और क्या क्या डिसएडवांटेज है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्लो डिसीजन मेकिंग कर रही हूँ, बट आई एम टेकिंग डिसीजन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉज एंड कॉज। तो ये ओवरकम भी मैंने बताया। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल्स है। तो अगर आप कोई वीकनेस बता रहे हो तो उनको बताओ आप उस पर कैसे वर्क कर रहे हो, हाउ यू आर वर्किंग ऑन दैट, हाउ यू आर कन्वर्टिंग दैट वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। आप अगर उनको ये नहीं बता रहे हो कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, आप उसके लिए वर्क ही नहीं कर रहे हो, तो वो आपको कैसे ले लेंगे। आप में तो वीकनेस हो गई। और कभी इंट्रोडक्शन में मत बताओ वीकनेस, हमेशा अच्छी बातें बतानी होती है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो शॉर्ट टेम्पर्ड है तो वी आर डूइंग द मेडिटेशन। ठीक है, आई एम रिलैक्सिंग माई सेल्फ। ठीक है, और मैं उसके बारे में सोचती हूँ, उस टाइम उसके बारे में डिस्कशन कम करती हूँ। ठीक है, तो इस वे में आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ उनको पुट करना है। एवरीवन गॉट इट। तो अभी आप अपने सबके निकालो क्वेश्चंस, और उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स भी निकालो। फिर आपको फ्रेम करने में या उसका एग्जाम्पल नहीं मिल रहा हो फिट करना, तो यू कैन कम टू मी। बट आपको अगर कोई भी स्ट्रेंथ और वीकनेस ऐसे पॉइंट टू पॉइंट बतानी है तो वो आपको रिजेक्ट करेंगे, दे विल नॉट हैप्पी विथ योर आंसर। यू हैव टू पुट द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं। Any questions? Next question is, they will ask you, what are your salary expectation? Are you okay with this package? What you will answer? Salary expectations, before you are going for any interview, you have to research about company का review क्या है, company का salary package on that profile, similar company or that company.
You will come to know about these things from Glassdoor, Ambition Box or Quora. These 3 websites will give you this knowledge. ठीक है, यहां से आपको प्रोफाइल वाइज, कंपनी वाइज आपको सैलरी का पता चल जाता है. तो एक्सपेक्टेड सैलरी पूछे वैसे तो यू हैव टू से दैट यू एज पर मार्केट नॉर्म्स, और जो भी आपका मार्केट स्टैंडर्ड चल रहे हैं एट दिस पोजीशन, एंड यू हैव टू स्पीक अबाउट योर स्किल्स कि आपको ये स्किल्स वगैरह है. फिर बोलेंगे एक पैकेज बताओ, तो कभी भी फिक्स पैकेज मत बताओ, उस रेंज में बताओ. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग 10 lakhs तो 8 to 10 या 10.5 ऐसे बोलो. ठीक है, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग 6-7 lakhs तो आप ये बताओ कि 6 to 8 lakhs का पैकेज यू कैन एक्सपेक्ट. हमेशा एक रेंज बोलनी होती है जहां पे आपका मिनिमम और मैक्सिमम बोल दो और बीच में आपका भी सैलरी आ जाए, जिससे कम आप नहीं जा सकते और जिससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो. हमेशा कई लोग 6 लाख बोल देते हैं, 6.5 lakhs बोल देते हैं, एग्जैक्ट फिगर्स बोल देते हैं. नहीं, हमेशा नेगोशिएशन के लिए अवेलेबल रहो. अगर इफ यू हैव कैन रिपीट नेम्स ऑफ दोस 3 sites. यस, ग्लासडोर, एम्बिशन बॉक्स, कोरा. ग्लासडोर, एम्बिशन बॉक्स एंड कोरा. ठीक है, तो दीज 3 वेबसाइट से यू विल गेट टू नो अबाउट द कंपनीज रिव्यू. सैलरी रिव्यूज भी पता चल जाएंगे आपको, सैलरी क्या प्रोफाइल पे सिमिलर और वैसी सैलरी चल रही है, और वैसे आपको पता भी होता है कंपनी क्या दे रही है. अगर नहीं पता होता है तो यहाँ से हम रिसर्च करेंगे. ठीक है, ऐसे कोई भी फिगर नहीं बोलना है. और ऑलवेज कम फॉर नेगोशिएशंस. ठीक है, अगर आप बिल्कुल नेगोशिएट नहीं करते, एकदम फिक्स सैलरी बोलकर आते हो और प्रोफाइल बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है, तो वो आपके लिए बैड हो सकता है. प्लीज मेंशन नेम साइट्स इन ग्रुप. यस, आई एम मेंशनिंग द नेम. ग्लासडोर, कोरा. ठीक है, ऑलवेज कम फॉर द नेगोशिएशन. एक्सपेक्टेड सैलरी विल बी इन द रेंज ओनली. ठीक है, एंड आर यू ओके विद द पैकेज. कभी भी कम पैकेज पे हम नहीं जाते हैं. कम पैकेज पे कभी जाते हैं जब वो प्रोफाइल बहुत वीक हो, आपको वहां पे काम करने को ना मिल रहा हो, और बहुत अच्छी कंपनी की अपॉर्चुनिटी आ जाती है और वो बेटर प्रोफाइल है. आप सेल्स प्रोफाइल पे थे, आपको ऑपरेशंस मिल गया, जेपी मॉर्गन इस टाइप की कंपनी मिल गई, तो व्हाई यू विल नॉट गो फॉर दैट? यू विल गो फॉर दैट, करेक्ट? तो कम पैकेज पे भी यू विल गो. ठीक है, तब आप बता दो दिस इज अ वेरी गुड कंपनी, द ड्रीम कंपनी फॉर मी, इट इज अ वेरी रेपुटेड कंपनी, आई ऑलवेज हैव अ ग्रेट प्रिविलेज टू वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड दीज कंपनीज आर वेरी मच इन लाइन विथ माई स्किल सेट्स, एक्सपर्टाइज. तो मुझे इस कंपनी में वर्क करने में कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, विद अ लेस सैलरी ऑल्सो. बट हमेशा हाई सैलरी. अगर आपको सेम प्रोफाइल मिल रही है, सेम कंपनी टाइप मिल रही है, मतलब प्रोफाइल भी सेम है और सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी है, तो आप क्या उसी पैकेज पे जाओगे? नो, ऑलवेज यू विल डिमांड 30 to 40% हाइक. इफ यू आर एक्सपीरियंस पर्सन, ऑलवेज डिमांड 30 to 40% हाइक. ठीक है, तो अपनी सैलरी से वैसे ही 30-40% एक्सपेक्ट कर सकते हो हाइक. अगर आपको आप कुछ लोग बोलते हैं मैम हमको चाहिए 50% हाइक, 70% हाइक, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए यू हैव टू ऐड सम सर्टिफिकेशन कोर्सेज. आपको बहुत बहुत सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने पड़ेंगे, कुछ आपको एक्सपीरियंस और स्किल सेट्स बतानी पड़ेगी कि क्यों यू आर ओके फॉर 70% ऑफ हाइक. दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. और वो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? अपने स्किल सेट्स को बताओ कि आपको ये आता है, ये एक्सपीरियंस है, ये कंपनी को हेल्प कर सकता है, आपने एडवांस एक्सेल का कर रखा है, आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग करा हुआ है, डेटा एनालिसिस आता है, पावर बीआई टूल आता है, दैट विल वैल्यू एड टू द कंपनी. ये वैल्यू एड भी करेगा, कंपनी को वैल्यू करेगा, इसलिए यू आर डिमांडिंग द हायर सैलरी. ठीक है, एक बार इन क्वेश्चंस को रिवाइज करो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, फिर वी विल मूव फॉरवर्ड.
ma'am, if they say after negotiation we can't offer you this much, then what we have to reply? You can देखो उन लोगों का भी बजट होता है. अगर आपका 6 lakhs का मतलब आप डिमांड कर रहे हो 10 lakhs, उनका है 8 to 9 lakhs, then you have to think about it कि ये कंपनी में और इस टाइम मुझे इस पे वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. As a fresher, I always say you will open for the opportunities and company. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है. हो सकता है अपन को 10 से 12 लाख का भी पैकेज मिल जाए, बट अगर हमको कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हमें 6-7 महीने काम कर लेना चाहिए. एक्सपीरियंस, वो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था. ठीक है, तो अगर वो बोलते हैं कि हम तो इतना ही ऑफर कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, तो यू कैन से टाइम लो कि आई विल रीथिंक अबाउट द this salary package. I will ask with my parents and I will also rethink about this decision and I will get back to you. ठीक है, और फिर अगर आपको लगता है कि हाँ कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोफाइल अच्छी है, तो उनको मेल ड्राफ्ट कर दो that I have seen कि कंपनी का रिक्वायरमेंट बहुत अच्छा है, कंपनी इज अ वेरी गुड कंपनी and I can go for this package also because I am looking for the opportunities. I know this budget will not, like this salary package will not matches with my criteria, but yeah, I am open to work, I am open for the learnings. ठीक है, तुमको ये बता दो मेरे से मैच नहीं हो रहा है, बट मैं बस लर्निंग अपॉर्चुनिटी के लिए इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ. ठीक है, नहीं तो उनको लगेगा हाँ हमने बोला तो देखो मान गए, कहीं के लिए भी ओपन है ये, तो तुमको बताओ यस we are not open for this, but yeah, I have read about the company, I have read about the role that is very in line with my skill sets, that's why I am accepting the offer. Always this is the question for experienced person, जिसने already experience लिया हुआ है, तो they will ask you why you left the last organization. ठीक है, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी कंपनीज चूज कर रहे हो, इसका आंसर मैं और भी बहुत सारे शेयर करूंगी आप, तो मैं बोलूंगी why you left previous job, उसका क्या आंसर दोगे आप? Ma'am, can we say that the job location was not preferable and hence I have to relocate it due to few reasons? Job location is the reason. जॉब लोकेशन इज द रीजन, बट अब आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हो वो भी आप देख लेना. व्हाट इज द रीसेंट लोकेशन, मतलब करंटली व्हाट लोकेशन यू आर गेटिंग, दैट इज ऑल्सो इन लाइन विथ यू. ठीक है, वो भी आपके नियर बाय होनी चाहिए. ऐसे नहीं दैट इज फार अवे विथ यू एंड यू लेफ्ट दैट जॉब बिकॉज ऑफ द जॉब लोकेशन ओनली. ठीक है, इफ योर दिस कंपनीज लोकेशन मैचेस विथ यू, देन यू कैन से दैट कि you move to this location and you are looking for the opportunity in this area only. ठीक है, also you can say that you have worked in that organization on the particular role, but that is not matches with your skill sets, that is not matches with your expected role. But in this organization, when you come to know that this company is offering you your expected role in which your skill sets are matching, जहां पे you have experience, you have expertise, तो you ready to come up with that organization. ठीक है, और sometimes for greater opportunities, ठीक है, अगर बहुत टाइम हो जाता है, जैसे 1-2 साल आपने कर लिया, 2-3 साल किसी कंपनी में कर लिया, तो better opportunities के लिए भी you can say you are coming for the better opportunities in the organization. अप्रेजल, बेटर अपॉर्चुनिटी, बट एक सैलरी को आप प्रायोरिटी मत देना कभी भी कि सिर्फ सैलरी पैकेज के लिए. इफ यू आर चेंजिंग द कंपनीज, दैट विल नॉट हेल्प यू टू क्रैक दैट इंटरव्यू. इफ यू आर like you are changing the organization for some skill sets, for some location issue, or sometimes you are not able to learn in that organization, then you can say.
बट सैलरी पैकेज के लिए आप कंपनी को छोड़े जा रहे हो हर 6 महीने में, तो वो आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। ओके, तो प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ी है? करियर में ब्रेक आया है। करियर में ब्रेक, अगर if someone having career break, then you have to say that because of some personal reasons, और पर्सनल रीजन भी सोच के रखना। वैसे तो बोलना कि कभी कभार तो आप बता नहीं पाते हो, और जब वो पूछे कि बताओ ही, तो कुछ ना कुछ ऐसा एक आपके पास पर्सनल रीजन होना चाहिए, और जो उनको लगे कि यह सीरियस इशू है ये, ठीक है, हेल्थ इशू और वो सब। बट उनको ये बताओ कि अब आगे जाके ये हेल्थ इशू आपको अफेक्ट नहीं करेगा। दिस इज फॉर द टाइम बीइंग, एंड नाउ यू आर ओके टू कम अप विद अपॉर्चुनिटीज। और करियर ब्रेक में भी यू हैव लर्न दीज सर्टिफिकेशन कोर्सेज। ऐसे नहीं आप बिल्कुल खत्म हो गए थे, आपको कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। अगर किसी का मैरिज रहा है, किड्स रहा है, तो वो बोल सकते हैं। उसके बाद भी आपको बोलना है कि यू हैव लर्न सम ऑफ द सर्टिफिकेशन कोर्सेज फ्रॉम द ऑनलाइन वेबसाइट। कुछ IFRS का बताओ, कुछ आप अपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, डेटा एनालिटिक्स, पावर BI, एडवांस एक्सेल, इन सब के सर्टिफिकेशन कोर्सेज यू कैन इंक्लूड, ठीक है। मेंशन करती हूँ एक बार क्वेश्चन ग्रुप में। सब अपने अपने आंसर्स बना लो, फिर वी कैन डिस्कस इन द ग्रुप ऑल्सो। एग्जाम्पल्स भी सबके आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू फ्लेक्सिबल और रिजिड टाइप ऑफ पर्सन? यू एक्सेप्ट द चेंजेस, और सिर्फ आपको ये सब आपको रिजिड रहना पसंद है ना? यू आर फ्लेक्सिबल विद द टाइमिंग्स ना ही आप फ्लेक्सिबल हो विद द लोकेशन पार्ट। आप रिजिड टाइप ऑफ पर्सन हो या फ्लेक्सिबल हो? फ्लेक्सिबल ही रहना है। यू चेंजेस आर वेरी गुड फॉर लाइफ, ठीक है। इफ यू आर एक्सेप्टिंग द चेंजेस, यू आर डायनेमिक पर्सन, बिकॉज चेंज इज ऑलवेज गुड फॉर द लाइफ। आपको प्लानिंग्स भी चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि आप रिजिड पर्सन रहोगे तो यू आर नॉट फ्लेक्सिबल विद द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत डायनेमिक रहना पड़ेगा आपको। इफ देयर इज सम चेंज इन द प्लान, यू हैव टू चेंज योर प्लान ऑल्सो, सो दैट यू कैन कम्यूट विद द थिंग्स। Also, you have to be flexible with the location part and timings also, ठीक है। मैं मानती हूँ कुछ गर्ल्स के लिए इट इज एक्सेप्शंस कि आप हर लोकेशन के लिए, हर टाइमिंग के लिए